Alberta Hurabana Khandiri Bilian Thiri Biri Biri Shiba Baba 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 Riandala Balagadana Mandara Yadiri Biri Riba Baba 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 Shayara Manduri Alabara Rigidiri Birian Thura Barahante Malbarata Brondorian Dina Mama Mambre Zagadala Balagadana Managadiri Birian Dina Mama Mamro Shiba Baba 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 Biri 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 Baba Lagadana Managadana Managadiri Birian Dina Baragadana Mahandana Gadiri Birian Diri Zagadana Gadiri Biri Malama Shandana Gadura Barahandana Si Baba Lagadana Managadana Managadiri Birian Dura Baba 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 Malboro Boshi Almanda Rabbani Ashe Dira Baba Baba Shibarandana Gaduri Alamashe Marahata Brondori Mamam Roshi Almanza Bronzo Briganda Rabbani Ashe Zala Mama Riga Dina Toko Roko Toro Moro Riga Dina Gadiri Biri Balba Hasta Brandana Katiri Biri Mamroshi Almanda Rabbani Ashen Terebe Lamashko Brondoni Gadira Barahan Terebe Dira Baba Baba Shabara Bara Bara Biri Labarandana Gaduri Birian Te Mama Masko Brosko Rian Tarabara Hatta Broto Hura Baba Baba Zigadina Manakandura Bala Hastiri Birian Tere Biri Malba Hasora Baba Shikriandana Hastiri Biri Zagadana Gadura Bala Gadana Mahandana Katiri Birian Tere Biri Malma Hasto Broto Huri Baba Baba Shila Baraha Lele Yamamambro Sandana Diarabarante Zagadalaga Dura Baragadana Mahandana Gadiri Birian Thoro Malbara Siri Biri Almanza Bronzo Bragandana Managadiri Uri Biri 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 Shiba Baba 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 Sharala Mala 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 Shibiri Biri 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 Uri Baba 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 Malboro Bushiri Andana Gatana Managatana Brahata Hura Barahandana Lime Mamro Shalamandana Gadiri Biri and Tere Biri 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 Ziandala Shalbala Ragadana Haskuri Andina Marahalba Hasto Brondo Mama Mamro Sialmanda Dina Managa Dina Katuri Alma Shibara Ori Mama Mamambro Salamanda Rabbania Ragadana Gadiri Biri and Deri Baba 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 तू मेरे शत्रुओं को उठाकर पटकता है तू मेरे शत्रुओं को पीछे करता है तू मेरे शत्रुओं के ऊपर मुझे जय दिलाता है रियल मांदना गादीरा बारासिया तेरे री बाबा 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 ओरी बिरी 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 रबा बाबा 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 शंदला बरगदला बरगदली बरगदली ओरी बिरी 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 बरगदला बरगदला मनगदला मनगदली बिरी अंदीरा बरगदला बरगदला शरण mana 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 shandala balagadala balagadala dori biri 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 rikhandala balagadala balagadala shikheri biri 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 rahatta broto hurala barahan biri biri an biri 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 zagadala gaduri biri an dina mama mamro sala mama rakha toko roko toro moro zila mana gadura bari andana re mama mamro shialbe तेरा धन्यवाद हो पिता आपके चरणों में आते और इस समय हम प्रार्थना करते हैं तेरे बेटे बेटियों को प्रभु जो लोग आज तेरे वचन को सुने उनके जीवनों में आप बातचीत करें पवित्र आत्मा आपकी रूहानी ताकत उनके जीवन में काम करे
आइए पवित्र आत्मा हमारे होठों से होकर बातचीत करिए। सब बातों में हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तुझे महिमा देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सालों में एवरीवन, जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे एक विशेष विषय के ऊपर बात करना चाहता है। और जिस विषय के ऊपर बात करना चाहता है, पुराने समय पे बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते थे, जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये बड़े बुजुर्ग जो बात कहते थे, वो बड़े बुजुर्ग यूं ही हवा में नहीं बात कहते थे। कई सालों के बाद जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना मैंने शुरू किया, तो परमेश्वर के वचन में, नीति वचन उसकी 12 के 14 में ऐसा लिखा है, जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। जैसा आप करोगे वैसा आपको भरना भी पड़ेगा। आज लोगों को ना तो परमेश्वर का डर है और ना लोगों के अंदर परमेश्वर के दासों के प्रति आदर है। उनके अंदर परमेश्वर का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। भय चला गया है और पवित्र आत्मा का भी डर उनके अंदर नहीं है। और परमेश्वर के दासों का भी अनादर कर देते हैं, धमकियां दे देते हैं, रोक लगा देते हैं, रुकावट लगाने की भी कोशिश करते हैं। ये बात जो कही गई है नीति वचन में कि जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। यदि आप दूसरों की बेइज्जती करोगे तो आपकी ऐसी बेइज्जती होगी और आप भी ऐसे बेइज्जती का कारण बन जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं तो एक बात कहता हूं, जब आपकी कोई बेइज्जती करे तो आप चुप रहिए, पलटा मत लीजिए, क्योंकि रोमियो 12 के 19 और इब्रानियों 10 के 30 में लिखा है कि पलटा लेना मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम है। तुम बदला लेने की कोशिश मत करो, चुप रहो। और मैंने ये सीखा है चुप रहना, और दूसरों को भी कहता हूं चुप रहो। गलातियों 6 के 7 में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यदि आपको कोई धमकी दे तो आप चुप रहें। यदि आपको कोई बदनाम करे, आपके खिलाफ में आप बातें करें, आपसे झगड़ा करने की कोशिश करें, उस समय भी आप चुप रहिए। क्यों चुप रहने की आवश्यकता है, आपको मालूम है? एक बात मैं आज परमेश्वर के वचन से बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसकी 1 के 6 में लिखा है, परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें दुख दे, क्लेश दे, उन्हें बदले में क्लेश ही मिलेगा। यदि आपको कोई बदनाम करेगा, याद रखिएगा उसकी भी बदनामी होगी। यदि आपको कोई धमकी देगा, उसको भी धमकी मिलेगी। आपके साथ कोई बुरा करेगा, उसके साथ भी बुरा होगा। आपको कोई दुख देगा, क्लेश देगा, सताएगा, वो खुद दुखित हो जाएगा, क्लेश में आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से निपट लेगा जो लोग आपका विरोध करते हैं, आपका सामना करते हैं, आपके खिलाफ में बातें करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जिंदा परमेश्वर के लोग हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको और मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पलटा लेने वाला परमेश्वर है। बहुत समय पहले की बात है, मैंने किसी एक भाई से झगड़ा कर लिया, बहुत समय पहले की बात है। और झगड़ा करने के बाद वो भाई मुझे एक शब्द भी पलट के उसने जवाब नहीं दिया, एक भी जवाब उसने पलट कर नहीं दिया। और मैंने उसको बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें भी बोल दी, धमकी भी दे दी। आपको मालूम है, अचानक एक जगह हम बीघापुर जगह करके
कन्वेंशन करने के लिए वहां पर गए, और ये एक सच्चाई है। और जब बीघापुर में हम कन्वेंशन करने के लिए गए तो लोग पेट्रोल लेकर हमें जलाने के लिए आ गए। सारा गांव हमारे विरोध में हो गया, और कई मसीही लोग हमारे विरोध में हो गए, पास्टर्स हमारे विरोध में हो गए। वहां से हम कैसे कैसे अपनी टीम को लेके, अपने लोगों को लेके वहां से हम जान बचाकर भागे। प्रभु ने वहां से हमें निकलकर भागने में मदद किया। वहां से प्रभु ने हमें निकाला। पुलिस ने भी हमारा साथ दिया। और आपको मालूम है, जब हम घर आए और रात को जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने कहा जाओ उस भाई से माफी मांग ली। और मैं तुरंत सुबह ही उस भाई के पास गया और मैंने कहा भाई, वो मुझे देखकर डर गया, लेकिन मैं गया और मैंने कहा भाई डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए आया हूं। वो भाई मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और मुझे गले लगाए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उस बीघापुर में कलीसिया बंद नहीं हुई। आज बहुत जोर शोर से प्रभु का काम वहां पर हो रहा है। यदि कोई तुम्हें दुखी करेगा तो वो इतना ज्यादा दुखी हो जाएगा कि वो सोच भी नहीं सकता। और मैं बार बार हमेशा एक बात को बोलता हूं, कभी भी किसी भी प्रभु के दास के विरोध में मत जाइए। कभी किसी भी परमेश्वर के सेवक के खिलाफ में बातें मत करिए। बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश दे, बदले में उन्हें क्लेश ही मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर निपटे ऐसे लोगों से जो आपके खिलाफ में हैं, तो आप चुप हो जाइए। यदि आप चाहते हैं कि जो कोई आपकी ठट्ठा उड़ा रहा है, हंसी कर रहा है, मजाक कर रहा है, आपकी नाम धराई कर रहा है, आपके खिलाफ में बातें बोल रहा है, आप चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। हमारा प्रभु निपट लेगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बाइबल उठाकर पढ़ लीजिए, जितने लोग भी मसीहों के विरोध में, प्रभु के भक्तों के विरोध में जितने भी उठे, उनका नाम और निशान खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। इसीलिए मेरे प्रियो, ना तो किसी का दिल दुखाएं, खास करके किसी भी अगुवे को ना टच करें, किसी की सेवकाई को मत रोकें, किसी को धमकी मत दें। और ऐसा है तो आप माफी मांगे, क्योंकि जब परमेश्वर का हाथ किसी के पीछे पड़ जाता है ना, आज दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मुझे ही ले लो, रॉबर्ट जेम्स को ही ले लो, उसके पास काला इल्म है, वो जादू टोना करता है, वो भूत हमारे घर में भेज देता है। अच्छा, तो बाइबल के अंदर ये भी तो लिखा है कि यीशु मसीह को लोगों ने कहा कि इसमें दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह को लोगों ने कहा ये शैतान की सहायता से शैतान को निकालता है। अब यीशु मसीह को न जाने क्या क्या उन्होंने लोगों ने बातें बोली, क्या यीशु मसीह ने पलट कर कोई जवाब दिया? आज लोग परमेश्वर के दासों को, कौन सा ऐसा परमेश्वर का दास है जो काला इल्म करता है? कोई परमेश्वर का दास जो यीशु मसीह का नाम लेता है, वो कोई भी काला इल्म नहीं करता। ये आपकी गलत फहमी है। शैतान ने आपकी आंखों के ऊपर कब्जा कर रखा है, आपको समझ नहीं आता। मेरे प्रियो, माफी मांग लें। अगर किसी का आप दिल दुखाते हैं, किसी को धमकी देते हैं, तो आपको माफी मांग लेनी चाहिए और जीवन को बिल्कुल प्रभु के साथ सही कर लेना चाहिए। जो लोग प्रभु के लोगों को दुखी करते हैं, वो खुद दुख को देखेंगे, क्योंकि जैसा करोगे वैसा आप भरोगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। आप बहुत जल्दी भारत के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आप एक ऐसी चीज देखने जा रहे हैं
ये भविष्यवाणी है। पूरे देश के अंदर डाटा सर्वर डाउन हो जाएगा, कई ऐसे ऐप बंद हो जाएंगे, नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। और बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसकी 7 अध्याय की पहली आयत में, चारों दिशाओं की हवाओं को रोक दिया जाएगा। और हवाओं में क्या है? हवाओं में डाटा है, डाटा स्टोरेज है, सैटेलाइट है, सर्वर है। बहुत जल्दी आप देखेंगे, न्यूज में भी आप सुनेंगे, न जाने कितने ऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है। सर्वर डाउन हो जाएगा, सर्वर स्लो हो जाएगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, किसी के विरोध में मत जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।